morning and welcome to this revision class today. As we are moving on the revised syllabus, we are just all revising the chapters already taught. In this regard, yes, in last lecture we discussed something about the fundamental units and derived units as well as their corresponding quantities. Now today in the same chapter we will discuss order of magnitude and significant figures. Well, what is order of magnitude? Although you know that if you see the CBSE revised syllabus, in the deleted part order of magnitude is there, but significant figure is still there. Okay, but you have to know at least some little bit about this order of magnitude also. Therefore, let me explain order of magnitude first. What is order of magnitude? The order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude. As it is clear? Okay. That means if your number is 8, then this would be your reasonably written as 0.8 into 10 to the power 1. And there is a provision that if something is some number n is written as n into 10 to the power x, then this power of x has to be there, provided this number must be greater than 0.5 and less than 5. Okay, remember this is very, very important thing, that if number is between 5 and 0.5, or sometimes even we take it is not that, but it is 3.16 or 5. Sometimes in some books you can even get 3.16 also, which is 10 to the power half. Okay, the under root 10. But mostly in the books it is written and must be between 5 and 0.5. If it is there, then it is approximately 10 to the power 0. Rest of the thing is, for this case, 0.8 is definitely less than 5, and therefore this is just 10 to the power 0, and remaining thing is 10 to the power 1. We can write it as 10 to the power 1. I am just repeating that how to represent an order of magnitude. Suppose you are having 25. You are having 25. 25 is first written as 2.5 into 10 to the power 1. Sorry, 10 to the power? Yes, 2.5 into 10 to the power 1. Well, this 2.5 is less than 5, and therefore it is approximately equivalent to 10 to the power 1. The order of magnitude of this is 10 to the power 1. 25 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1, क्योंकि इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड. ये वो पावर ऑफ 10 के टर्म में आप लिख रहे हो तो 25 की जगह 10 टू द पावर 1 लिख सकते हो. लेकिन अगर आप समझ लीजिए वी राइट 90, इफ वी राइट 90, then 90 can be written as 9 into 10 to the power 1. This 9 is definitely greater than 5. Therefore, that is also equivalent to 10 to the power 1. 10 to the power 1. You have 10 to the power 2 as order of magnitude for 90. That means 90 is closer to 100. तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल हम नहीं आने हैं क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, रिवाइज सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर दिया कि 10 की पावर नियरेस्ट 10 की पावर 10 के फॉर्म में जो हम लिखते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं. जैसे मैंने 25 लिखा तो 25 को 2.5 इंटू 10 टू द पावर 1 लिखा, फिर 2.5 को टैली करते हैं ये 0.5 और 5 के बीच में है या नहीं, अगर उससे कम है तो या उतने के बीच उतने ही है तो हम लोग इसको 10 टू द पावर 0 मानेंगे. लेकिन हाँ, अगर 5 से ज़्यादा हो जाए 6 पॉइंट समथिंग होता तो उसको हम मान लेते हैं 10 टू द पावर 1 मान लेते हैं. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अब इसके बाद हम लोग सीधे सीधे देखते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स द
definition is already clear. You can just have a look at it. Significant figures are normally those digits in a measured quantity which are known reliably or accurately. कोई भी मेजरमेंट करेंगे, वर्नियर कैलिपर से करे, स्क्रू गेज से करे, आप मीटर बेस से करे, कोई भी चीज आप करें, मान लीजिए मेजरमेंट आप वैल्यू मेजर वैल्यू निकाल रहे, देन यू ऑलवेज नीड सम एक्यूरेसी. ओके, और जितने भी आप एक्यूरेटली मेजर करते तो उस चीज को हम लोग उसको जो एक्सप्रेस करते उस चीज को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग कुछ नहीं कुछ रूल्स जरूर देखेंगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपको जानना चाहिए. जैसे कि वो सारे रूल्स मैंने पिछले लेक्चर में दे रखा है, तो ज़्यादा डिटेल जानने की नहीं जरूरत है. अब ये समझ लीजिए कि ऑल नॉन डिजिट नंबर, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे मैंने लिखा है 2 4 6 8 4 2464. ठीक है, 2464. इसको इसमें नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, क्योंकि इस रूल के हिसाब से अगर मैं ये लिखे 1164 तो इसमें भी 4 है. अगर पॉइंट भी बीच में लग दे तो भी 4 रहेगा, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है. दूसरा क्या है कि जीरो बिटवीन, ये सब पॉइंट्स आपको बता चुके पिछले लेक्चर में. जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो और जीरोज, अगर दो से एक से ज्यादा जीरो तो भी चलेगा. बिटवीन 2 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज और आर सिग्निफिकेंट फिगर. अगर दो नंबर के बीच ऐसे ये दिया है, इसके में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में एक है जीरो. इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच 2 जीरो है. तो एक जीरो है या उससे ज्यादा जीरो, दे आर ऑलवेज काउंटेड एज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स. All such points are there. They are already given in our previous lecture. Since this is revision of the same chapter, so we have to take them in a very shorter way. 2 points मैंने आपको बता दिया आपके उसके significant figures का. ऐसे ही कई एक और पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि 0 after a non-zero digit is a significant figure provided the given number is a measured quantity. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, 0 after non-zero digits is a significant figure. तो इसके मतलब क्या है कि अगर मैं लिखूं 2.00 सेंटीमीटर, तो ये एक मेजर क्वांटिटी दिखता है क्योंकि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी. तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर मैं खाली 200 लिखूं, 200 ग्राम लिखूं, तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. If I write just 1.000, it has 3 significant figure. If centimeter, meter, millimeter, gram, second, like this, they are also mentioned. If nothing is mentioned, then this will have only 1 significant figure, this non-zero number. Because rest of thing has no significance. ये मेजर्ड वैल्यू है ही नहीं, बिना आपके यूनिट के उसको मैं डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी नहीं मानेंगे. इफ समथिंग इज नॉन मेजरेबल थिंग, देन दे विल हैव ओनली non-zero digit as your significant figure. Like this, it has only 1 significant figure. But if centimeter is written, then it is a measurable quantity, then it has
4 significant figures like this. तो ये कुछ significant figures के बारे में हमने बता दिया. अब इसी तरह से हम लोग जब देखते हैं next is we are discussing error analysis. Error analysis has a very important role to play in the entire physics, right from theory to experiment. Okay. तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट निकालते तो क्या गारंटी है सारे रीडिंग हमारा एक्यूरेट हो? नहीं हो सकता है. एक्चुअली एरर होता क्या है, जब हम लोग कोई चीज़ कहते हैं तो उसमें हम लोग कहीं किंतु परंतु कहीं रह जाता है, ये हो सकता है, इतना हो सकता है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. whenever there is some sort of uncertainty in physical expression, then we call it has some error. तो उसको तो मैं फिलोसॉफी नहीं बोलना चाहता. आई डोंट वांट टू हैव details of that, all those explanation, but we will rather take how we determine different types of error. Error क्या है? Error is an uncertainty that is already there in the book. It is given in the NCERT book, and even in my previous lecture I have given the detailed lecture. In general, अगर छोटे में आपसे पूछे what is error, it is an uncertainty in a given result. Okay, it is an uncertainty. Therefore, if we write that our answer is between 2 and 3, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 2 plus minus something is our result. तो plus minus something जो होता है that is called as result. जैसे मान लीजिए we write x equal to 4 plus minus 0.1 सेंटीमीटर. अगर मैं कहीं एक्सप्रेशन कहीं पे ऐसे लिखता हूँ, इसके मतलब क्या 4 तो एक्यूरेट है ही, इट इज 100%, इतना तो होना ही होना 4 सेंटीमीटर. लेकिन प्लस 0.1 भी हो सकता है या माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर ज़्यादा या 1 मिलीमीटर कम. तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर अनसर्टेनिटी, दिस इज योर एरर. तो ऐसे अलग अलग एरर बनता है. इधर जनरल दैट इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन एरर. तो अब अगर हम ये चीज़ ना देखें, कैसे देखते हैं, तो सिस्टम से हम लोग देखेंगे कि सपोज वी आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग इन एनी एक्सपेरिमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एनी एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जहाँ लेंथ निकालना स्केल से या वर्नियर कैलिपर से कुछ भी करूँ, या घड़ी बार बार देख रहा हूँ, कुछ भी करें, तो इन सब से जो हम लोग निकालते हैं, तो सपोज वी आर हैविंग 5 रिजल्ट. तो 5 रिजल्ट में जैसे मान लीजिए 2.46 सेंटीमीटर, 2.44 सेंटीमीटर, 2.40 सेंटीमीटर, 2.45 सेंटीमीटर एंड 2.43 सेंटीमीटर. अब देखिए इतने सारे रीडिंग आया. तो अब इतने सारे रीडिंग जब मेरे पास आया, सपोज वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू. तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम, हमारा 5 रीडिंग हमने लिया है, सभी रीडिंग लेते समय हमें लग रहा है ये सही है. इन दैट केस हम लोग इनका मीन ले लेंगे. तो मीन रीडिंग जो इनके आएंगे, दैट वी कॉल एज ट्रू वैल्यू. इसको हम लोग x से लिखते हैं, दैट वी डिपेंड बाई जस्ट x. ठीक है, ट्रू वैल्यू हो गया. अब ट्रू वैल्यू से हर एक को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो x माइनस 2.46, x माइनस 2.44, x माइनस 2.40, x माइनस 2.45, ये सब अगर हमने करते हैं, देन व्हाट वी हैव, इनको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर. रिमेंबर दिस x may be greater than some number and it may be less than another number. जब greater than some number होगा तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा, उस समय वाला रीडिंग पॉजिटिव होगा. और जहाँ पर x is less than some number, तो वहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव. यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है.
यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ये भी पॉजिटिव। दो जगह आपने देखा, 1 2 3 जगह नेगेटिव आ रहा है, कुछ पॉजिटिव। इट इज जस्ट एजम्पशन, आई हैव नॉट एक्जैक्टली कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स। हो सकता है ये भी आपको जो आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो जाए। तो ये तो डेफिनेटली है कि बहुत ज़्यादा है, 4.46 4.45, तो ये दोनों तो नेगेटिव होना ही है। दीज टू मस्ट बी नेगेटिव, और बाकी चीज़ जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एनीवे, दिस इज वी कॉल एब्सोल्यूट एरर। अब अगर एब्सोल्यूट एरर को हमने मीन ले लें तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के समय हम लोग ये नहीं लेते, ये माइनस प्लस नहीं लेते। If we take the mean of magnitude of absolute error, mean of magnitude of absolute error, इनको हम लोग कहेंगे mean absolute error। ठीक है, ये सारे जितने भी आएंगे इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बार करके। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बार अपॉन एन, इनको सिंपली डेल्टा एक्स से लिखेंगे। एक्स इज ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा एक्स इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, दैट इज मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एक्स। तो एक आपने एक जनरल एरर देख लिया जो कि आपके क्वेश्चन से, आपके ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ जाता है, और ये दिख गया आपको। तो जब ये दो चीज आपको दिख जाए तो बहुत आसानी से व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट हैव वन थिंग दैट इनके भी फ्रिक्शन, इनके भी आप फ्रैक्शन ले लेंगे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। आपको पहले ही बता दिया था ट्रू वैल्यू क्या था, कई ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उनका जो एवरेज होता है मीन, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं इसको हम लोग, और रिलेटिव एरर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। इसी रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हेन वी गेट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली परसेंटेज एरर के कई टाइप के क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए, और कुछ रूल्स इसमें जरूर मैं ब्रीफ में बताऊंगा। यू हैव टू नो ऑल सच रूल्स। मैं 2-3 रूल ही काफ़ी है इसके लिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो आपके क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये कह दूँ एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, तो ये एक रूल हो गया। रूल नंबर 2, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी भी लिखें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं यूज करेंगे, बाकी चीज वैसे ही रहेगा। यहाँ पर इसमें मैक्सिमम कहे या ना कहे एक ही चीज, लेकिन यहाँ पे जब डिवाइडेड वाला केस है तो मैक्सिमम वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो अदरवाइज यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ओके, लाइक दिस। थर्ड वन इज a to the power n b to the power n, then delta x upon x into 100 n delta a upon a n delta b upon b
into 100. These are the three rules by which the entire percentage error type of question could be solved. Okay, with that we have completed today's lecture. You can get a lot of questions in the attached PDF file. Therefore, you will definitely enjoy with the questions. Thank you.